Okay, thank you very much for showing up. Let me introduce. अरे थोड़ा ऑडियो देना ऑडियो माइक चालू नहीं माइक अरे ऑडियो दे ऑडियो So anyway, let me brief you about the film first, and I'm going to introduce my cast later on. So Indian Leader is a drama about 106 minutes in length. It's it's in Hindi with English subtitles, and it's a story of one chemical plant worker who wants to escape from poverty. So very universal बाहर निकलना है. The things are extremely difficult. He has to fight against corporate greed. He has to fight against corrupt people in the system, and so on. So that's kind of story in nutshell. And our film was completed about a couple of months back. We screened our film at least 13 different festivals so far. It's pretty good response from various festivals, mainly in North America. We did screen our film at in Goa as well in November. One festival in Germany as well. So we've been doing really good when it comes to film festival. Officially, we are releasing theatrically on June 19th. Is there anything else you want me to speak about film, or otherwise I'll introduce my cast. So let me introduce lead actor Rahul Bhatt. Rahul is playing the role of Jai in the film. Unfortunately, Tilotma is not here. Tilotma played female lead actor. But she is not here. She is busy shooting the film right now. But let me introduce Samvedna Shuvalka. She is playing the role of Rita in the film. We have Mehul Butch. Mehul is playing the role of Ketul Shomani, the bad man in the film. We have Vivek Gamande, who is playing the role of Digant in the film. There is no audio. Okay, let's start with Rahul yourself. अरे हा हा आवाज बंद होईल का हा हेलो हमिंग आहे ते काय मतलबच नाही त्याचा मग कर आवाज क्या आ रही है सेटिंग दादाला बोला ना जरा हाँ बोला वरना ये पूरा आ जाएगा हाँ वही अरे चेयर नहीं जेबीएल के स्पीकर है हां ये शाबाश. अरे हाँ थैंक यू थैंक यू दादा मंडल आभारी आहे हाँ जी तो जैसा कि संजय जी ने बोल दिया कि दिस इज बेसिकली a big time art house film and I am really proud to be associated with Union Leader. हम लोगों ने अहमदाबाद में शूटिंग की करीब 30 दिन और जिसमें से 15 दिन हमने मिलों में काम किया और जिस मिल में हमने काम किया हम लोग सब ऑलमोस्ट दमे के मरीज हो गए थे by the end of it but एक सिंसियर एफर्ट है संजय जी का ऐसी कहानी आजकल के ज़माने में जिस तरीके का सिनेमा हम देखते हैं इंडिया में मतलब जिसमें सिर्फ गाने और अराउंड द ट्रीज जो होता है ना हीरोइन के पीछे की साड़ी का कौन सा वो ख़राब नहीं वो भी अच्छा है लेकिन इस दौर में ऐसी कहानी कहना बहुत ही ब्रेव स्टेप है और आई एम रियली honored to be doing such a film. I'm very thankful to Sanjay for that. Thank you. So, Indra, would you like to? Do I have to? Do you want me? Do I have to say something? Yeah. So, hello everyone. मेरा नाम संवेदना स्वालका है. मैंने गुजराती फिल्म से स्टार्ट किया था और शायद इसलिए मुझे ये फिल्म भी मिली. And I'm just very grateful to Sanjay sir for giving me this opportunity because all the actors standing here and even Tilotma ma'am, I've looked up to these guys and I love the work that they do and I aspire to reach where these guys are. So I just got to share the frame with these people and Auntie Tarif. So yeah, I'm just very happy to be a part of it and I just hope that people see it because I understand it's a
it's an independent film and it's not like you said, okay, आजू बाजू दौड़ने वाला and all of that. But I just hope people watch it and yeah, because we've all worked very hard. Thank you. सब कुछ बता दिया है. As Sanjay bhai said, I'm playing the Batman in the film. मैं एक छोटी सी बात शेयर करना ये चाहूँगा कि मैं काफ़ी कुछ गुजराती फिल्में करता हूँ, मैं थिएटर करता हूँ गुजराती. When I got a call for this film, मैं संजय भाई को जानता था, मुझे नहीं पता था. मैंने वो XYZ जिस पर मैं भरोसा करता हूँ उससे मुझे फ़ोन किया कि एक ऐसी फिल्म है और हिंदी है. मैंने बोला फिर अहमदाबाद में क्यों शूट, और मैं यूं ही चला गया था. एंड द प्रोसेस स्टार्टेड. जब शूटिंग चलती गई, शूटिंग खत्म हुई. शूटिंग के बाद संजय भाई US चले गए थे और वहीं से भी हमें इतनी सारी अपडेट्स मिल रही थी फिल्म की, और मैं इतना इम्प्रेस हो गया. और एक इंसान जब अपनी बिलीफ को पिक्चराइज करता है तब यूनियन लीडर बनती है. ट्रस्ट मी ऑन दैट. मैं इतना ही कह पाऊंगा. इट्स अ वंडरफुल थिंग. और आज यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, चाहे वो मेन स्ट्रीम सिनेमा न हो, एक्सपेरिमेंटल न हो. मेरी समझ में ये सब बातें नहीं आती. आई लव द ट्रेलर एंड आई एम श्योर जितने भी लोग देखेंगे दे विल लव द फिल्म फॉर श्योर, बिकॉज एक इंसान ने अपनी बिलीफ को पर्दे पर उतनी ही बिलीफ के साथ उतारा है. थैंक यू सो मच संजय भाई. हेलो, मेरा नाम विवेक गमंडे है. वैसे तो फिल्म के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर हमारे डायरेक्टर साहब ने और राहुल जी ने आपको बता ही दिया है और आप लोगों ने ट्रेलर भी देख लिया है. इस फिल्म के बारे में मतलब जैसे मैं जुड़ा उसकी जर्नी के बारे में सिर्फ 2 लाइन बोलूँगा मैं कि एक तो मैं NSD से हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हूँ. और ये फिल्म करने के पहले मैं 3-4 फिल्में कर चुका था, जैसे रामलीला, बाजीराव मस्तानी, गैंग्स ऑफ वासेपुर. तो ये सारी जो फिल्में की थी उसमें मैंने कहीं पे मैं गैंगस्टर बना था, कहीं पे पिंक बना था, कहीं पे मतलब गांव वाला बना था. तो जब कास्टिंग डायरेक्टर कॉल मी और उन्होंने बोला कि इसमें एक किरदार है जो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग किया हुआ स्टूडेंट है और जिसकी नई जॉब लगती है. है तो इंटरेस्टिंग, मतलब इस तरीके का किरदार मैंने कभी किया नहीं है. तो फिर मैंने कहा यार स्क्रिप्ट सेंड कर सकते हो. तो बोले स्क्रिप्ट नहीं, हम लोग बम्बई में ही और आपको ऑडिशन के लिए आना है. तो मैंने कहा अच्छा ओके. तो मैं गया वहाँ, तो संजय जी से मिला, कास्टिंग डायरेक्टर से मिला. तो वो पढ़ कर के मुझे इतना अच्छा लगा स्क्रिप्ट कि ये किरदार इतना चैलेंजिंग है मेरे लिए और मेरी पर्सनालिटी से टोटली डिफरेंट है. मतलब एक ऐसा बंदा है जिसने डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है और जो लोगों को जज नहीं कर पाता है और समय के साथ साथ चलने के अलावा वो मतलब खुद की लाइफ में भी डिस्टर्ब है. तो और दूसरा एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि इस फिल्म के बारे में जो है, जैसे कि अभी हम इस समय में देख रहे हैं, जैसे राहुल जी ने बताया कि लव स्टोरीज ज़्यादा आ रही है, वुमन बेस्ड भी फिल्में आने लगी हैं. तो इस तरह की हेल्थ और सेफ्टी को लेकर की जो बात है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अभी हमको कम हमारे देश में एफर्ट लोग मार रहे हैं. तो मैं रियली दिल से शुक्रिया अदा कहूँगा संजय जी का जिन्होंने ये कोशिश की है. एंड मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनाया. थैंक यू. कैसा रहा एक्सपीरियंस? अरे बूम किशन बाइट लगाएंगे. हाँ जी. देखिए जनरली यूनियन लीडर मतलब एक मिल वर्कर का किरदार था. तो मुझे लोग ज़रा कतराते हैं ऐसे रोल देने से क्योंकि उनको लगता है ये जो है ये मिल वर्कर तो लगेगा नहीं, क्योंकि मिल वर्कर जो होते हैं उनको लगता है कि नहीं वो थोड़े से अलग दिखने वाले, तो इसको थोड़ा सा रिच लगता है यार, ये नहीं लग सकता है. तो हाँ थोड़ा अप मार्केट लगता है. तो इट वॉज ए चैलेंज ऑफ कोर्स कि कैसे अब मैं, तो किसी ने बोला यार तू ऐसे कर ले, थोड़ा काला हो जा, थोड़ा ऐसा कर. बट मुझे लगता है कि एक्टिंग जो होती है वो गोरे काले से थोड़ी ज़्यादा डीप होती है. और मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर ली. जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो हालांकि मुझे बहुत डर लगा स्क्रिप्ट पढ़ के, मैं कैसे करूँगा, तो बहुत ही मुश्किल है. लेकिन संजय जी का कुछ अजीब सी कॉन्फिडेंस थी उनको मेरे ऊपर. मैंने कहा चलिए डायरेक्टर की अगर कॉन्फिडेंस है तो मैं भी खुद पढ़ता हूँ. सो आई डिडंट नो, इट जस्ट हैपेंड.
Okay, Rahul, what is the first reaction the moment the maker of this film approached you? The film carries a very strong social message. It talks about chemical factory, the disease which is there in the factory. There are so many things which happening in the country, long back. What is the first reaction? Or what you have done that is absolutely mind blowing. We can make out on the screen. जिस तरह की आपके कपड़े हैं, डिटेलिंग है, आपके हाथ में वो धागा है और Yeah, my first reaction was that I was kind of not really for it because I thought अरे कैसे कर पाऊँगा मैं, ये तो बहुत ही difficult role है, मतलब मेरे लिए, because you have to change your body language, you have to do a lot of things. It's not only about clothes or you just put on some makeup and do something, but you have to really understand this acting. I want to approach this role in a very different way than I did in Ugly or Gangajal or Fitur or what I'm doing in Dasdev. I want to approach this role totally differently. So let's see क्या film ने कैसा किया, क्या आपने तारीफ. Is it effort to break your image what you have done in past? Normally you said when we talk about Rahul we'll see him in a different level, upper caste वो lower caste कहाँ play करेंगे, in Ugly we have seen you as an hero. तो ये बिल्कुल अलग होता है, बहुत मुख्तलिफ हो जाता है. It is your effort to break your image what you have done in past? Yeah, in fact Anurag Kashyap tweeted about this film. He said Rahul is breaking. I'm so proud of him. I don't know if you saw that tweet. Yeah, so see, I feel an actor should be able to. In fact, the beauty of acting is that you can play different characters, and of course this was a very difficult character for me. वो ये हकीकत है, ये मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ क्योंकि ये कैरेक्टर मेरी निजी जिंदगी से टोटली डिफरेंट है. हालांकि अगली का कैरेक्टर भी काफी डिफरेंट, लेकिन अगली में तब मुझे स्ट्रगल मुझे थोड़ी सी पता थी क्या एक्टर, बिकॉज़ आई वाज प्लेइंग एन एक्टर इन दैट. But this is like a mill worker and I had not seen, so I give a lot of credit for my performance to Sanjay. So let me give some additional background. So what has happened was, I was in Canada and Rahul was the first actor I approached for this particular role, and I did watch Ugly a few times to understand Rahul and his performance and stuff like that. And I made up my mind. Very few, Rahul is a rare actor in Bollywood. I would say is a combination of both good look and acting. So I was pretty much sure if he is willing to do this role, I wanted him to play the role of Jay. Then conversation started. We talked about Koji Rent Street, came for a workshop. We tried different things. But you are absolutely right. When I saw Rahul in Ugly, I was a little bit worried. Like he has that look, right? And this particular Jay's role is a little bit challenging. But with the help from makeup artist, costume artist, the things we did during workshop and our conversation over the phone and things like that, I was confident that he can pull it off, and I think he did. And whenever I go for festivals and things like that, one of the things I heard from everyone is Rahul's performance is standing out, and so as other actors as well. But this film is about Rahul. If you look at the story, we are telling whole story from Rahul's point of view. He is there in each and every screen, each and every frame. There is not a single scene where Rahul is not there. So we are telling the whole story from his point of view, and that's how script was written. And we definitely wanted someone who can pull this off, and Rahul did. And so very happy about output and absolutely. Okay, Rahul carries a very strong social message. Talks about the disease which is there in the part of factory, and we have seen there's so many incidents happen in India. Do you think it has to be a tax-free film from the state or central government? That's a good, valid question. I think this film totally qualifies for tax-free, according to me. Absolutely. So it does actually, but again, I did inquire about this particular item a long time ago. I never got any response back. Mirja was tax-free and all that. But we'll see. Let's release the film, and if there's interest, we're gonna push that agenda again, and then we'll see what we can do. Yeah. And as a media, it's a request that please you also put a word about this. राहुल जी, एक बात मैं जानना चाहूँगा आपसे, कभी आपको डर नहीं लगता कि ये एक्टर आप कहीं एक इमेज में बनने जा रहे हैं या कहीं आपको ऐसे ये रोल ऑफर हो, क्योंकि आपने पिछली फिल्मों में जो किया बहुत हटके किया है, तो कभी डर लगता है? वो एक्टर क्या जो डरे.
वो एक्टर ही नहीं हो सकता। संजय सर, फिल्म का नाम यूनियन लीडर, कहाँ से ख्याल आया कि फिल्म का नाम यूनियन लीडर रखना चाहिए? Well, so we had a different working title for this film. I started with Hawa Mahal, and then we said Kamla Union, and end of the day we decided to, say Union Leader. But it's about union and it's about union leader. So I think it makes perfect sense to have that kind of title. Again, when I started thinking about this project, I made this film for not only for Indian audience but for international audience as well, right? So there were a lot of consideration for everything, not just title. And if you watch the film called Erin Brockovich or Michael Clayton, all these films they have done exceptionally well, not only in Hollywood but internationally. And our storyline is compatible with those films as well, right? So yeah, I mean, again, Indian audience is different, so I'm not too sure whether Indian Leader is that likable in Bollywood. But we thought that that's the best title we have, and that's what we did. Okay, Rahul, when somebody like Anurag Kashyap caliber appreciates your work, and he tweeted publicly, do you think the sense of, the amount of responsibility goes up as an actor, as an individual, because somebody like Anurag Kashyap appreciating your work and he's finding it interesting, what you have done in the past, you're breaking your image somewhere down the line? Well, Anurag was the guy who got me back after 8 years of taking a sabbatical in acting. This kind of film, of course, the directors like Anurag, Kashyap, Prakash, Sudhir, all they love this kind of film. And this is a realistic cinema, जिसे हम कहते हैं. और it's very important that people who are important in the film industry or they're there, those kind of people, they really appreciate and promote this kind of cinema. I feel very happy about that. Okay, Rahul, do you think it's a second journey of yours in the industry which is going on a very positive note? The kind of work you're doing in the past and kind of cinema you're doing at the moment. Do you think it's a new journey of Rahul? Yeah, it's quite interesting, and let's see how it turns out to be. Yeah, it's very interesting, and I'm very thankful and I'm very grateful to God that opportunities are coming in my way, and this year looks very good. I have Union Leader on 19th January. I have Dasdev in March. I have Chucky later on in June or somewhere. Then I have another. So I have 5-6 releases this year. Let's see. Okay, we can throw some light on Dasdev. There are so many things to talk about. The film is already there in the news. Before it's getting released, it's already there in the news. We can throw some light on your character. Dasdev it's going to release in March, and of course it's directed by Sudhir, we all know. And I have Aditi Rao Hydari and Richa there. It's a new take on Devdas. You will see. We'll do that conference some other time. Thank you. संजय जी, एक बात मैं जानना चाहूँगा, आपको इतना भरोसा राहुल जी पे कैसे हो गया कि इस रोल को राहुल जी ही प्ले कर सकते, कोई और नहीं कर सकता? I know he is a good actor. कैसे लगा? Why did you select Rahul? Well, I already, told Rahul has that combination of both, and I watch more Hollywood films than Bollywood, and there are a lot of like George Clooney, for instance, right? He has that look, and he's talking about this, right? So I was looking for someone who's not only good looking, but with when it comes to acting and stuff like that, So naturally, Rahul was my first choice, and as I said, very happy. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, guys. Yeah. Or close, yeah. This is good. Okay. सर, इतना अच्छा ट्रेलर था, क्या कहना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में? आप एक पिता का रोल भी प्ले कर रहे हो, यूनियन लीडर का भी रोल प्ले कर रहे हैं. ये बहुत ही कठिन किरदार था निभाने के लिए, और चूंकि एक मिल वर्कर की कहानी है तो इसके लिए जैसा कि मैं इस वक्त दिख रहा हूँ तो वो नहीं चलता, लेकिन हमने काफ़ी रिसर्च किया और संजय जी ने काफ़ी हेल्प की ये किरदार निभाने के लिए,
और अब आप देखिए फिल्म कैसा। अच्छा, यूनियन लीडर का किरदार जो होता है नेता की तरफ होता है, जो नेता को जनता को साथ में लेके जाता है, तो कितना बड़ा दिक्कत है जनता को साथ में लेके नहीं, ये नेतागिरी इसमें बिल्कुल ही नहीं, इनफैक्ट पर्सनल स्टोरी है। एक आम आदमी की कहानी है जो कि एक मिल में काम करता है, और चूंकि उस मिल की जो ऑलरेडी जो यूनियन है उधर, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है या वो मज़दूरों का ख्याल नहीं रखते, तो एक आम आदमी को सारी मुश्किलों के बावजूद भी अपनी सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स को दरकिरार करते हुए आगे उठ के कदम बढ़ाना पड़ता है, और उस वजह से वो मिल का यूनियन लीडर बन जाता है। सर, ये क्या ट्रू इंसिडेंट पे कोई गुजरात की मिल की कहानी है, कुछ आप ये संजय जी बोल सकते हैं। Yeah, so I like to use word chemical plants, not mill. But anyway, yeah, I mean, story was inspired from more than one stories, and definitely there was an incident at a company called Hema Chemicals in Baroda. That particular chemical plant, I think 9 or 10 workers died around year 2000 because of exposure to chromium sulfate. So that was one of the stories that inspired us to make Union Leader, absolutely. तो सर, आपको लगता है गुजरात में इस तरह के बहुत सारे लॉस इम्प्लीमेंट किए जाते हैं वहाँ पे मिल्स में, केमिकल फैक्ट्रीज? So what has happened is, when it comes to rules and regulations and laws की बात कर रहे हो, I think India has all kinds of rules and regulations. I think problem is implementation is very poor, and part of the problem is our corrupt system. So and that's what we are telling in our story as well. So laws are there. We have one of the best laws in the world. However, implementation is very poor. राहुल सर, इतने अच्छी फिल्म आपने बनाई, ट्रेलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो कितना मुश्किल रहा, और बॉलीवुड से क्या क्या आपको कॉम्प्लीमेंट मिले, क्योंकि ऑलरेडी इट्स वन मैनी इंटरनेशनल अवार्ड्स? जी हाँ, मतलब अच्छा लगता है जब आप मेहनत करके आपका काम आगे आ जाए और लोग आपकी प्रशंसा करें, और ख़ास तौर पे तो अगर आपके जो कलीग्स होते हैं या जहाँ आप काम करते हैं उस फील्ड के कुछ दिग्गज लोग आपकी तारीफ़ करें तो अच्छा लगता है। अनुराग कश्यप के अलावा नहीं, काफ़ी लोग जिन्होंने भी देखा है अभी तक सबने तारीफ़ की है, और सब ने प्रोत्साहन बढ़ाया है कि मैं इस तरीके का काम कर रहा हूँ, और सबको अच्छा लगा है। It take a long time to portray your character like we have seen in the trailer. एक बारीकी को सही किया गया, like your clothes, your texture of saying your dialogue, कितना टाइम लगा, like रिसेंटली आपके जितने ही किरदार देखे हमने, ये ज़्यादा कुछ अच्छा बेहतर उठ के आया है आप में? ये हाँ, इसमें क्योंकि एक मिल वर्कर की कहानी है, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज पे और डायलॉग डिलीवरी पे बहुत हमने ध्यान दिया कि इसमें मैं टोटली जस्टिफाई कर पाऊँ उस किरदार को, तो उसमें काफ़ी मेहनत गई है, जो कि हर एक्टर करता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा काम हुआ है। तो लगता है मेहनत सफल हुई है? अब सफलता तो आगे पता चलेगा, लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि सफलता उसमें होती है कि जब आप अपना काम करो और आपको ये लगे कि आपने अपना बेस्ट दिया था, कहीं आपने उसमें कोई कोताही नहीं भरती थी। तो मुझे लगता है कि चूंकि ये फिल्म ऑलरेडी इतना अच्छा पूरी दुनिया में फेस्टिवल्स में जा रही है, इस फिल्म को अपनी एक जगह मिल रही है फिल्मी दुनिया में, और दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान के बाहर भी सराहा जा रहा है इस तरीके की फिल्म को, तो मुझे लगता है कि मोर देन व्हाट वी हैड आस्क्ड फॉर। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें नेशनल एंथम कंपल्सरी नहीं किया गया सिनेमा हॉल में, हाउ यू सी दिस जजमेंट? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो मैं क्या बोलूँ आप उसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट माई बाप है, वो डिसाइड करेंगे, बड़े इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं वहाँ पे, वो डिसाइड करेंगे क्या करना है, मैं क्या बोलूँ उसके ऊपर। संजय सर, any expectation from upcoming budget from has your entertainment field, any expectation from you? भाई मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि बजट में फिल्म इंडस्ट्री का भी सोचा जाए कि जितने टैक्स हमारे ऊपर लग रहे हैं, इससे इंडस्ट्री जो है बहुत परेशान है, और इंडस्ट्री के लिए बहुत
मैं तो गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूंगा कि इंडस्ट्री के बारे में भी सोचे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत ही छोटी सी इंडस्ट्री है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर निर्भर उनका रोज़गार उसके ऊपर निर्भर है और टैक्सेस बहुत ज़्यादा है हमारे ऊपर और बेइंतहा टैक्स है, उसको कम किया जाए। थैंक यू। और उसी से ऐसी फिल्में तब बन सकती है जब टैक्स कम हो। अगर टैक्स बहुत ज़्यादा होगा तो छोटे प्रोड्यूसर तो काम ही नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। संवेदना प्लीज, संवेदना या सर सबसे पहले आपका किरदार बताइए किस तरह का, आप एक मतलब रिश्वतखोर जैसे दिखाई दे रहे हैं। नहीं, रिश्वतखोर नहीं। अभी फिल्म का नाम जब यूनियन लीडर होगा तो यूनियन किसके खिलाफ बनती है? मिल मालिक जो होगा, फैक्ट्री ओनर जो होगा उसके खिलाफ, क्योंकि अगर यूनियन बन गई तो सबसे ज़्यादा तकलीफ उसी को होगी। तो इसमें मैं केतुल करके बंदा है हु ओन्स अ कंपनी, और ऑफ कोर्स एक प्लांट चलाने के लिए जितनी करप्ट प्रैक्टिसेस करनी चाहिए वो कर रहा है, एंड ही इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट द वर्कर्स, एंड दैट्स व्हाई द यूनियन लीडर कम्स इन पिक्चर। सो इन वन वर्ड, वंस अगेन इन रेफरेंस टू दिस फिल्म, अ बैड मैन। सर, आपको लगता है आज भी हमारे देश में जो लोअर सेक्शन में जो काम करने वाले हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता? बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, आपको क्या लगता है? नहीं दिया जाता। हाँ, बस सेम यही लगता है कि बिकॉज यू नो आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, और मैं माटुंगा जैसे एरिया में रहता था जहाँ 5 स्टार प्रॉपर्टी हो गई है और आग की वजह से बहुत पॉपुलर हो गई है आजकल, दैट इज़ फिनिक्स मिल एंड कमला मिल। अगर आज से 25 साल पहले उस प्रॉपर्टी को देखा होता, क्योंकि हम वहाँ से रोज़ गुजरते थे, तब पता चलता कि मिल मजदूरों की हालत क्या हुआ करती है। तो आज भी सुधार हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत, नथिंग मच। मेरे कैरेक्टर के बारे में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ये जो मैंने कैरेक्टर किया है ये दिगंत पटेल करके एक लड़का है जिसकी उम्र करीब 26 या 27-28 साल की है, और उसने डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग जस्ट कंप्लीट किया है और उसकी नई जॉब लगी है। तो इस कैरेक्टर का मतलब अगर कैरेक्टराइजेशन के बारे में बात करूं तो ये जो लड़का है मतलब ये एक तो लोगों को जज नहीं कर पाता है ठीक से, और उसको मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है दुनिया का कि मतलब डिप्लोमेट लोगों के साथ किस तरीके से हमको बात करनी चाहिए। एंड वो जब जाता है फैक्ट्री में काम करने के लिए तो वो देखता है कि मतलब यहाँ हेल्थ और सेफ्टी की कोई बात ही नहीं करता है, और लोग जो है मतलब केमिकल क्रोमियम सल्फेट ले करके मर रहे हैं। तो वो एक पहला बंदा है उनके साथ काम करने वाला जो आवाज़ उठाता है इसके खिलाफ। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका संजय सर के साथ काम? बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा मेरा, और एक्सपीरियंस के तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं फैक्ट्री में काम कर रहा था मतलब शूट कर रहा था, तो जैसे राहुल जी ने बताया कि वो जो फैक्ट्री थी जहाँ हम शूट कर रहे थे वो कोई इतनी मतलब कोई घातक केमिकल की फैक्ट्री नहीं थी, बहुत ही छोटे मोटे किसी केमिकल की एक फैक्ट्री थी। तो वहाँ जब वर्क कर रहे थे तब हमें इतनी दिक्कत हो रही थी। तो मैं ये सोच रहा था उस वक्त कि रियली अगर हम क्रोमियम सल्फेट की जो बात कर रहे हैं उस फैक्ट्री में जाकर के शूट करते तो हमारा क्या हाल होता। और रियल लाइफ में जो मज़दूर लोग जहाँ काम कर रहे हैं क्रोमियम सल्फेट या जैसी जो केमिकल्स जो फैक्ट्रियाँ चल रही है, तो उन लोगों की क्या दुर्दशा हो रही होगी, कितने लोग अब तक मर चुके होंगे। तो मैं वो थिंक कर रहा था, तो अंदर से एक मेरा कैरेक्टराइजेशन वो बिल्ड हो रहा था। तो मुझे एक अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि नहीं, जो मतलब ये इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, और वही एक्चुअली मेरा कैरेक्टराइजेशन था। तो उस तरीके से एक मतलब मेरा एक कुछ अंतर्द्वंद बन रहा था कैरेक्टराइजेशन को लेकर के और वो शूट के दरमियान को लेकर के। So what do you expect from upcoming budget? Budget? Yeah, now I come in that typical Bhakta category. So I expect everything good, and it has to be good and it will be good for sure.
यू सर। आप जो है एनर्जी से निकले हुए हैं, एनर्जी से निकलने के बाद आपको कितना फायदा मिला? और आज के दौर में जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो उनके लिए एक्टिंग का जो क्लासेस हैं, ज्ञान है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो खुल गए हैं ऑल ओवर इंडिया। तो आज की डेट में आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को कहाँ देखते हैं और अपने आप को कहाँ देखना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन कर दिया आपने। देखो इसमें क्या है, इसमें एक तो बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हर जगह की हर एक तरह की क्वालिटी होती है। तो NSD को आप किसी के साथ मतलब कंपेयर नहीं कर सकते हो, और ना ही कोई दूसरा, मतलब जैसे अगर मैं एक्टर हूँ तो मैं इरफान खान के साथ कंपेयर नहीं करूँगा मैं, ठीक है। मैं एज एन विवेक घमंडे जो हूँ मैं उसको अपने साथ ही कंपेयर करूँगा मैं। और जहाँ तक मेरी स्कूलिंग की बात आती है तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अगर मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं बन पाता। हालांकि अभी भी मैं नहीं बना, अभी मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में और बहुत सारे कैरेक्टर परफॉर्म करने हैं। लेकिन NSD एक ऐसी जगह है जहां आपको एक्टर को पनपने का और मतलब खुद को ग्रो करने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देती है, और वहाँ आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो आई लव माई मदर स्कूल, और मैं तो हमेशा अपने NSD के बारे में अच्छा ही बोलूँगा। वेलकम। कैसे पता कौन रोशन? ये रोशन है। ओके, हाय रोशन। हेलो एवरीवन। ओके, you guys make people feel like stars. So thank you. Yes. मैम आपका कैरेक्टर इस फिल्म में कैसा है, क्या है बताइए? ओके, मैं एक हॉस्पिटल में एक पैथोलॉजी लैब असिस्टेंट का रोल प्ले कर रही हूँ, और फिल्म की शुरुआत में तो ये होता है कि जो इसके बॉसेस हैं वो भी इन्वॉल्व हैं विद द बैड मैन इन द फिल्म, एंड बाकायदा इसको ज़बरदस्ती कहा जाता है कि ब्लड रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट करना है। और इसीलिए क्या होता है, जो यूनियन लीडर भी हैं, जो वर्कर्स हैं मिलके, वो प्रूव नहीं कर पाते हैं कि वो लोग बीमार हो रहे हैं, उनमें से लोग मर रहे हैं, क्योंकि उनकी ब्लड रिपोर्ट हमेशा नॉर्मल आती है। But halfway through the film, she has a change of heart and she realizes that she cannot any longer go on doing this because ultimately it's killing people. And तो जब राहुल भट्ट जी का भी कैरेक्टर है, she runs into him and वो उनको help करती है to give him she almost smuggles the original blood reports and gives it to him at the stake of her job and probably at the stake of her life also. But so my character is that, you know, that one person who helps to, you know, bring about a conclusion to the story. So that's the role I play. कितना डिफरेंट है गुजराती फिल्मों में काम करना, हिंदी फिल्मों में काम करना? नहीं, इतना डिफरेंट तो नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ बहुत प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, तो बस लैंग्वेज बदलती है ऑफ कोर्स। एंड मैं बेसिकली हिंदी स्पीकिंग हूँ, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, तो हिंदी मेरी मदर टंग है, तो ऑब्वियसली आई फील मोर कंफर्टेबल इन हिंदी। एंड तो मुझे उस हिसाब से लैंग्वेज वाइज आई थिंक आई एम मोर कंफर्टेबल, बट अदरवाइज आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट द सेम। नहीं, ये इतनी सीरियस फिल्म थी और इतना मतलब राहुल जी का भी कैरेक्टर इज़ डाइंग एंड यू नो सब कुछ इतना सीरियस था, तो मुझे लगता है हम लोग सब इतना एग्जॉस्ट हो जाते थे बाय द एंड ऑफ इट कि या आई डोंट रिमेंबर एनी प्रैंक्स। तो एनी फनी इंसिडेंट, हमें 1 साल हो गया शूट किया, मुझे सोचना पड़ेगा। एनी फनी इंसिडेंट, आई कांट थिंक ऑफ समथिंग, वेट लेट मी थिंक। No, I think no. Funny incident तो I can't come up with anything, क्योंकि मेरा कैरेक्टर जितने दिन था तब तो सब बहुत सीरियस थे, but